started painting, I didn't go to art college. Lunch time में मैं जाके एक course करूँगी. So I decided to do a course with YWCA. मेरे ऑफिस के ठीक सामने था. This series is done in the year 2000. Right. This is 24-year-old work. Yeah. And in this series, I had gone to Anwan Nicobar and under the sea I took a dive. So I chose not canvas or paper. This is हाथ से काता हुआ, चक्की से काता हुआ, और ये खादी है. And the color which I have used is indigo. नील के पौधे से घिस के उसका पत्ता सड़ाना पड़ता है, उससे करके कलर निकलता है. And Shiv as Ardhanari Nateshwar. Shiv is not only a god, he is the symbol of both male and female energy. न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदम न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोजनम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम. क्या आप जानते हैं कि ये आर्टवर्क किसने बनाया है और इसकी खासियत क्या है? ये किस चीज से बना है और किस चीज पे बना है? ये आर्टवर्क एक बहुत ही स्पेशल IRS ऑफिसर संगीता गुप्ता ने बनाया है. और सिर्फ ऐसे ही नहीं, आज हम उनके स्टूडियो में मौजूद हैं पृथ्वी आर्ट एंड कल्चर सेंटर पे, जहाँ पे ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो एक नई कहानी कहती है, एक डिफरेंट कहानी कहती है एक दूसरे से. तो आज हम इस संगीता गुप्ता से मिलेंगे जो हमें अपनी ही जुबानी अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाएंगी और उनके पीछे की क्या कहानी थी वो बताएंगी. So, ma'am, apart from being a civil servant, you have a multifaceted personality. You are not only an artist, you are also a writer, a poet, and a filmmaker. Today, we are here in your studio. We can see your paintings, abstract paintings. Could you please just take us through your studio? Yes, I would love to do that. आज्ञा चक्र जो हमारा होता है, जो दो आंखों के बीच में है, ये हमारे पास भी थर्ड आई है, बस हमने उसको यूज नहीं किया है. I was painting a spring, waterfall coming to a stone. Right. So that was the impression in my mind while I was working this. The studio comes a culture center. I decided, it was in my scheme of things. I was very well prepared for my retirement. Yeah. People wait for, to achieve something. I was waiting for my retirement in this sense that I thought that I'll get more time for art and my writings. And I take it very seriously as an artist also. So, and also I thought that I'll be able to do more experiments. So after retirement, one can keep the house for 1 year. But I vacated my house in 1.5 months. Yeah. And I will go to this place and see how my studio is being constructed and what is happening. Earlier it was a law office and cubicles and everything. March से मैंने काम शुरू कर दिया था. And Carol's first room to 15th July. In 1.5 months we were able to set up this. So that is my passion. I thought that अपना काम start करेंगे, अपना और लोगों को भी promote करेंगे. So that was the thing. Here I would say that this is an experimental art because I thought that why not combine both poetry and art together? Right. Words can also be a character. Like Chinese script, when you see Mandarin or when you see Japanese script, so all is a character there. It's a very interesting way of doing things. Yeah. So I said I will use Hindi, alphabets or words as my character. So I wanted to talk about Siddharth. So this poem was written on a sunboard, Right. and then I thought कि इसकी मैं पेंटिंग करके इसको ऐसे बना देती हूँ. Then I decided कि एक natural frame होगा. So artist has to think on many levels. How will I present that? So I'm also known that how to mix words with color. Yeah. Actually, art and poetry are not two different things altogether. They complement each other. So that way I experimented this. This is from an old series of
2004. Initially, when I started painting, I didn't go to art college because I didn't get an opportunity. There's no gap in my career. Yeah. I immediately, the day I finished my masters, in few months' time, I went to the university to enroll as a PhD. I immediately got a job as a junior researcher. The day I resigned, and next day I joined as a lecturer. Yes. The day I resigned, I joined civil services until my retirement. So there's no break in all that. Yes, So true. it was very important for me to take a gap and work that way. And I always was very fascinated with paintings. I used to paint in my college days, school days, even fabric पे भी paint कर लेते थे. So all that I knew. So while I was posted in Calcutta, I said all challenges met. I'm married, I have a son, I have a good career, everybody, have so much adulation about my work. I was a very upright, firebrand Sangeeta Gupta. So अब और क्या करना है? So I said, what is my wish list? Yeah. So I decided that lunch time में मैं जाके एक course करूँगी. So I decided to do a course with YWCA. मेरे ऑफिस के ठीक सामने था. Yeah. I used to just walk there 3 days a week and उनके साथ थोड़ा काम किया. And without doing a group show, without displaying even one work, I did a solo exhibition. And I went to Mother Teresa. I was very close to her. I asked her कि आप मुझे ये कर सकते हैं क्या, inaugurate कर सकते हैं क्या? So she inaugurated everything I did, and for charity we raised funds and it was given to Pride, Child Relief from India. Right. So that way my artistic career started. This series is done in the year 2000. Right. This is 24-year-old work. Yeah. And in this series, I had gone to Andaman Nicobar and under the sea, I took a dive. Okay. So I saw a different world there. Yeah. And that inspired me. I said कि मेरे दिमाग में से ये कलर निकल है, मुझे इस पे काम करना है. So these are oil bound paper. Then I had used oil painting. Okay, this is oil painting. This is oil painting. All the whole series on these small format works are from the same series. Okay, from the Andaman Yeah, series. yeah. Okay, perfect. And this, while this studio was being set up, then I did this on the wood. So I like to challenge myself, and I challenge myself that any surface for an artist, anything should be its tool. Color किसी से भी बन सकता है. और this I wanted to. I was painting a spring, waterfall, coming to a stone. Right. So that was the impression in my mind while I was working this. Right. Here, this is very unique and special that we decided after retirement. Said now I have all the time in the world. So why don't I do something which is different? So I chose not canvas or paper. This is हाथ से काता हुआ, चरखे से काता हुआ ये खादी है. And the color which I have used is indigo. नील के पौधे से घिस के उसका पत्ता सड़ाना पड़ता है, उससे करके कलर निकलता है. तो वो कलर लिया और मैं सांगानेर के गांव में रहने के लिए चली गई 10 दिन के लिए. बिकॉज आई हैड मेट देम एंड हमारी एक टेक्निक है इंडिया में, इट्स कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग. तो ठप्पा सांगानेर का बहुत फेमस है. दिस इज द मोस्ट एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. We need to revive this. ऐसे कि मैं इतनी बड़ी पेंटिंग बनाऊंगी कि दुनिया को इसके बारे में बात करनी पड़ेगी. They cannot ignore khadi or indigo or the story which I am going to talk. So I decided to talk about Shiv. And Shiv as Ardhanari Nateshwar. Shiv is not only a god, he is the symbol of both male and female energy. The whole world is energy. Dominantly Prakriti and Purush. Both are assembled in Shiv. And then I started researching about him and I realized that I must say his story not as a simple god, एक हिंदू धर्म में god. Actually the whole cosmos, पूरा ब्रह्मांड ही शिव का है. So I started, because I am into abstract, but I wanted कि दोनों बातें कर सकूं. So I took form and formlessness. तो form मैंने ऐसे लिया है कि form जो है वो conceptual art है. The circle is the Brahman or the cosmos. The ling is there, so it represents the male energy and the third eye. उससे पूरी शिव की कहानी हो जाती है.
अगर और मेरा पर्पस था कि मैं अपनी आर्ट को केवल कलेक्टर्स और बड़ी आर्ट गैलरीज और इंटेलेक्चुअल और आर्ट कॉन्शियस तक ना रखूं। भारत का आर्ट जो है हमारे क्राफ्ट में है। गाँव गाँव में लोग दीवार पे पेंट कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो आई टुक सिंबल्स फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट। ट्राइबल आर्ट से कुछ चीजें ली, कुछ मैंने अपने जो लोकल विलेज लेवल पे क्राफ्ट होता है उससे लिया, और कहा कि मैं शिव की कहानी ऐसे सुनाऊंगी कि मेरा आर्ट जब मैं बताऊंगी तो 2 मिनट में एक बच्चे से लेके सड़क पे चलते हुए आदमी को भी समझ में आते हैं। हर हमारे देश का आदमी शिव की कहानी को मेरे तरीके से बोलने से समझ जाता है। सो दैट वाज द पर्पस। इसका कोई बहुत बड़ा कॉमर्स नहीं था, बट बिहार म्यूजियम व्हेन आई रोट अ प्रपोजल टू देम सेइंग दैट नील ने गांधी जी को गांधी बनाया। चंपारण मूवमेंट बीच का जो हमारा विरोध का स्वर है, या खादी, ये दोनों चीज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं। स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी ने यही कहा था कि हम अपनी चीजें पहनेंगे, हमारा अपना फैब्रिक इतना अच्छा है, मैं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होगा। सो ऑल दैट, सो इट बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं जो सुनना चाहता है मैं उसको खादी के बारे में बता सकती हूँ, उसको नील के बारे में बता सकती हूँ, उसको शिव के बारे में बता सकती हूँ। सारी लड़कियों को कह सकती हूँ कि शिव इज द अल्टीमेट फेमिनिस्ट, बिकॉज पार्वती इज नॉट merely a wife, she is a companion, she is a advisor, she is a friend, constant friend, 24/7 शिव के साथ ही रही है पार्वती। और सारे मंत्र आप देखिएगा, शिव उवाच, शिव ने कहा, संस्कृत में उवाच को कहते हैं क्या, तो शिव उवाच, शिव ने किससे कहा भाई, तो शिव ने सारी बातें पार्वती को ही बताते हैं। तो हर दैट इज a gender equality where Shiv considers Parvati as the best person to converse. So, इस तरीके से मैंने 200 मीटर बनाया, और वो फिर वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे मैं शिव को दिखा रही हूँ। दक्षिणेश्वर में बहुत सारे शिवलिंग हैं, या एक कोटी शिवलिंगम करके साउथ इंडिया में भी, बैंगलोर के पास, हैदराबाद के पास, एक आगरा में एक मंदिर है जहाँ पे करोड़ों शिवलिंग बनाने की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि शिव इन्फिनिट है। तो हम इन्फिनिट को कैसे बताएंगे, जो न कहीं से शुरू होता है न कहीं खत्म। और ये ब्लॉक मैंने उनका यूज किया था ये बताने के लिए कि गंगा नदी है ना, दक्षिणेश्वर में नीचे गंगा नदी बहती है, ऊपर बहुत सारे शिवलिंग हैं, एक शिवलिंग नहीं है। तो आप कहाँ क्या देखते हो जीवन में, कब आप उसको कहाँ पे उस एलिमेंट को यूज करते हो। आर्ट इज ऑल अबाउट लाइफ, जीवन में हमने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या पढ़ा है, किससे मिले हैं, तो इस तरीके से आर्ट होता है। ये जो सफेद पार्ट है, ये मैंने सांगानेर में जो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए दाबू यूज किया जाता है। पहले कपड़े पर वो रेंज जैसी एक चीज होती है, मिट्टी और गेहूं से बनी, उससे वो पहले ब्लॉक के ऊपर लगा के ठप्पा मारते हैं। तो जो सफेद पार्ट है इसमें मैंने वो टेक्निक, ये मैंने ब्रश लेकर खुद ही दाबू से पेंट कर दिया बिना ब्लॉक के। ये ब्लॉक, हाँ वो ब्रश ने कर दिया, बल्कि ब्रश चलता ही नहीं है, मिट्टी को लगा के ब्रश चलेगा कैसे। और मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं 200 मीटर बनाऊंगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो मैंने कहा जब बोला है तो करना भी पड़ेगा किसी को। तो मैं सुबह से लेके रात तक काम करती थी, कुछ घंटे सो फिर उठे, और उसी गांव में हमने खाना खाया, वहीं रह रहे। एक का खाना था किसी का, उसको ऐसा एक टेबल होता है बहुत लंबा, जिसको कपड़े बिछे भी करते, तो वो उस पर फिल्म भी बनाई है मैंने। ये श्लोक के बारे में ये श्लोक जो है ये शंकराचार्य का शिवोहम ही है जी। यहाँ पे यही 2 पीस लगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने पूरा शिवोहम लिखा है। और अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र तो एक ही कपड़े पर ऊपर से नीचे तक शिव का जाप करके मैंने लिखा। मैंने कहा एक गलती हो गई तो ये मिट नहीं सकता। हाँ, और ब्रश से लिखना बहुत कठिन है, पेन से लिखना तब भी आसान है। फिर वो इस तरीके से किया। जो मैंने कपड़ा डाई भी किया है उसको फ्लैट डाई नहीं किया। आप देखोगे कि मेरा सरफेस फ्लैट नहीं है, उसमें कलर के वेरिएशंस है। नहीं तो कपड़ा डाई करोगे तो एक जैसा लगेगा। हमने सब में अलग करने की, और मेरे पास चैलेंज ये था कि एक ही रंग, कोई दूसरा रंग नहीं उठाएगी, एक ही, वो भी इंडिगो, थोड़ा वो भी कलर है, कभी मतलब जरा सा उसको एयर मिल जाए तो वो खराब हो जाता है। ये सब बहुत सारी चैलेंजेस थे, पर मैंने कहा कि मैं एक ही रंग से 200 मीटर पेंट करूँगी। तो वो किसी और ने मुझ पे ये चैलेंज थ्रो नहीं किया कभी भी। मैंने लाइफ में जो चैलेंजेस लिए खुद ही अपने तय किया कि मुझे ये करना है, तो उसको करने की कोशिश की है। तो आर्ट ऐसे हमारा आया है। ये यहाँ पे शिवोहम में मैंने सिर्फ थर्ड आई यूज किया है कि
शिव तत्व जो है हमारा आज्ञा चक्र है। मैं बहुत डीपली इंडियन फिलोसफी को पढ़ती हूँ। तो आज्ञा चक्र जो हमारा होता है, जो दो आंखों के बीच में है, ये हमारे पास भी थर्ड आई है, बस हमने उसको यूज नहीं किया है, उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो इस पूरी पेंटिंग में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सीधे ब्रश उठाया, नील रंग लगाया और ये देखो कि सब में भी थर्ड ही आई की कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात किसी भी आने जाने वाले आदमी को भी बताऊंगी तो वो समझ जाता है। तो मेरा सब्जेक्ट मैटर शिव इसलिए है कि उनको समझना बहुत आसान भी है और उनको समझना असंभव भी है। वो रूप से अरूप तक इसी तरीके से मैंने फॉर्म दिया है। फॉर्म में उनकी मूर्ति नहीं बनाई है, कहीं कोई भी चीजें, जैसे वहां पे मैंने शिवलिंग के साथ लगी। आपने देखा होगा कि औरत की जितनी रिस्पेक्ट शिव ने की है ये किसी ने नहीं की। उन्होंने गंगा को सिर पे रखा था, जमीन पे नहीं रखा था। चंद्रमा भी फीमेल फॉर्म माना जाता है, फेमिनिन एनर्जी है, उसको भी सिर पे रखा था। पार्वती के डेथ पे तो उन्होंने सोचा कि वो तांडव करूंगा कि पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। तो ही इज द अल्टीमेट लवर। वो डांस भी करते हैं, वो योगा भी करते हैं, वो मतलब कृष्ण को ले लो, तो वो इस तरह की चीजें हैं जो हमें होलिस्टिक कल्चर मिलता है। बहुत फिलोसफिकल तरीके से काम किया है, मगर कोशिश उस पर भी ये रही है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो मेरे देखने वाले, जो मेरे ऑडियंस है, समझ गया। तो अभी 12 जगह मैंने 1 साल 10 महीने में 12 जगह ये एग्जीबिशन, और सबसे बड़ा चैलेंज था उसको ढाका ले जाना। अच्छा, क्योंकि वो एक तरीके से वहाँ पे शिव पर मतलब गदर हो सकता था, पर वहाँ पे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला। वाह, वो बहुत सेक्युलर लोग हैं। और जब उनके समझ में आया कि शिव कोई व्यक्ति विशेष या कोई भगवान विशेष नहीं, पूरा शिव तत्व है, 5 तत्वों को मिला दो तो शिव तत्व है। आपके अंदर भी शिव है, क्योंकि आप ही उन्हीं 5 एलिमेंट से मिलके बने हो, जिससे शिव बने। तो आप शिव से अलग नहीं हो, इसलिए आप शिव हो। मैं ही शिव हूँ, ये कहने की ताकत तभी पैदा होगी जब उनको आप आत्मसात करोगे और ठीक से समझो। जो हमारी अपनी चीजें हैं, जैसे मान लो ध्यान है, तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो गया मेडिटेशन। अरे मेडिटेशन से ये नहीं पता चलता है, मेडिटेट का मतलब बैठ के रिफ्लेक्ट करना। हम उससे तो जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त में चली गई हूँ, तो अमूर्त के लिए आपको इंस्पिरेशन और एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने फिर 5 तत्वों पे काम करना शुरू किया, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। तो अग्नि तत्व सूरज को प्रतिनिधित्व करता है, और बिना अग्नि सबसे प्योर भी है। जो कुछ भी चलता है उससे अगर आग निकलती है तो प्योरिटी का एक सिंबल माना गया है कि हम अपने कलुष को जला देंगे, उससे भी प्योरिटी आएगी। तो यही रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये काम बनाया था कि जो हमारे अंदर फायर एलिमेंट है, सूर्य का तत्व है। मेरा पर्पस ये है कि हम अपनी जड़ों से क्यों नहीं जुड़े रहते। मुझे पता था कि जिस दिन तक मैं अपने देश की, अपनी मिट्टी की और अपने कल्चर की बात नहीं करूँगी, मेरे काम का कोई मतलब नहीं। इस तरह का काम किया हुआ है। चाइना में ये वर्क किया था केवल इसलिए कि उनका एक जो इंडिया पेवेलियन था, 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मेरा काम इसलिए गया था कि उन्होंने कहा कि ये है इंडिया, इसमें कुछ भी मतलब और कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने एब्स्ट्रैक्शन को चुना है, हर आर्टिस्ट को चुनना पड़ता है कि, और चुनना मैंने नहीं चुना है, एब्स्ट्रैक्ट ने मुझे चुना है। यही इसकी थोड़ी समझ है, इसको इसमें रुचि है करने। मुझे जम्मू कश्मीर में भी किसी औरत को नहीं पोस्ट किया गया एज अ प्रिंसिपल कमिश्नर। आई वाज द फर्स्ट वन हु वेंट बाय चॉइस। राइट, ये करके नहीं कि मुझे पनिशमेंट के लिए मिला गया था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, बिकॉज माय सन वाज वर्किंग देयर। मैंने कहा चलो वहाँ इतनी खूबसूरत जगह है, पोस्टिंग जाएगी तो पूरा घूम भी लेंगे, देख भी लेंगे सब। तो आई वुड से कि वो भी एक चैलेंज था। और उस समय टेररिज्म इतनी पीक पे थी कि बुरहान वानी ये सब मेरे सामने हुआ है। और उसके 2 दिन पहले मैं कोकरनाग में थी, मैंने 4 नए ऑफिसेस खोले, किसी ने नहीं खोला। बारामूला अपने जाके ऑफिस खोलना, बारामूला मेरा प्रिंसेस से कभी नहीं गया, करके माने कि वहाँ जाके तो वापस नहीं पहुँचे। तो आप कैसे लाइफ को जीना चाहते हो? उन्होंने मुझसे कहा कि बारामूला में ऑफिस खोल दिया, आपको पता नहीं है यहाँ सोफिया है, ये है, आप मारा भी जा सकता है, तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा मारना तो है ही, मैं सड़क चलते दिल्ली में मर सकती हूँ, कोई भी धक्का दे देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो
मैं बारामूला में करूँ या दिल्ली में करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किस कन्विक्शन से अपनी नौकरी करते हैं या कोई भी काम कर रहे हो, तो मैं अपनी कन्विक्शन से जीती हूँ। उसमें उसके कई आयाम भी हो सकते हैं, शायद मैं एक चीज में अपने को पूरी तरह से नहीं अपने को एक्सप्रेस कर पाती, इसलिए बहुत सारी चीजें करते हैं। दोनों तरीके हैं जीने के। सचिन की तरह कोई सिंगल चीज पे ही फोकस होके उसी का भगवान बन सकता है, और कुछ लोग मल्टीटास्कर होते हैं, वो बहुत सारे काम। So this was the first part of our conversation with Miss Sangeeta Gupta, where she took us on a walkthrough in her beautiful studio. Stay tuned as we will be back soon with another video where we shall talk about how she began her journey as a poet and more about her books. Until then, please like and share the video and let us know your thoughts in the comment section below.